Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to ComSat's Institute of Information Technology, Islamabad campus. In the course of Learning Management Systems with the course code of CSC 350. Students, in the last lecture we started Slate. What is Slate? Sakai Learning and Teaching Environment. Now, in the last lecture we studied basic information about Slate. What was the purpose of developing Slate? Very briefly, just to recall, Slate was developed as a learning tool wherein the coordination between those who want to teach and those who want to learn should be developed, and maximum information with minimum time management should be shared between the participants. In any training, the participants are those who want to learn, those who want to improve their skills on the job while working, or during the training, if some innovation is being done, this should be shared. So the purpose of Slate was to facilitate education institutions in terms of coordination for the purpose of learning, sharing the material, developing certain workspace area for each participant. And in the last lecture we very quickly initially reviewed the development of Slate and then how to get started. Then in getting started we discussed what are the initial requirements. So one of the initial requirements when we start joining Slate is the username. So if you do not have username, you do not have password, login ID, you cannot benefit from Slate, the very important tool of learning management system. Now in the username, then we discussed how username is defined, how username is developed. If there are multiple campuses of a university, then the initial letter can be chosen for city where campus is located. Then the next two letters, for example XX, they can specify the batch, whether the admission was taken in batch 2009, 2010 or any other year when the admission is secured in that campus of the university. Then there is roll number, ZZZ. And once you have been assigned the username and you have been given the initial password, you can log in and you can benefit from the material which has been coordinated and organized by your teacher or the instructor. You can change obviously the password. In the last lecture we learned how to change the password, and after the receiving of username and password, you are generally advised to immediately change your password for the purpose of security. Then continuing the security of the password and the login ID, we discussed briefly workspace. So workspace is actually the space assigned to a user or a participant, or in simple words the student,
who has been allowed certain space to share the information, to benefit from information or the activities to participate. Schedule, we discuss what is schedule and how schedule can be arranged and rearranged, preferences, how preferences can be set, and a little bit we discussed about the resources, what type of resources, and the announcements, what type of announcements, and this is how we proceeded in the last lecture. So students, the topics to follow in today's, very quickly let me make you the round of what we will discuss today. My workspace, this I introduced. Today we will further proceed. We discuss what is home and the profile wherein you can store your information related to yourself, and the membership, about the membership. For example, if you want to add more sites or the work sites of the others, that can be done, and the schedule, resources, announcements, work site setup, preferences, account, and help. This was the brief review of what we have done in the last lecture. Then reviewing the schedule, in schedule we log in Slate and My Workspace by pressing the My Workspace tab, and then the schedule link, and then we can add link located at the top of the screen and complete the required information, whatever the information has been asked for. So after incorporating or updating the information, then we press save event button, and when we press, all the information which we have incorporated will be stored. ये वो पेज है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो कैलेंडर आपका वीक वाइज कैलेंडर आपको शो कर रहा है. एक वीक में ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, एंड if there is change in class, so you can note down the changing schedule, and or else the administrator can also communicate to you if your teacher has done any activity or your teacher is planning to do any activity that can be added to your schedule. इसके बाद फिर हमने ये उसके रिसोर्सेज को हमने किया था कि रिसोर्सेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है आमतौर पे होती है, लेकिन हमने इसको कोई ज़्यादा डिटेल से नहीं किया था, इसलिए हम इसको थोड़ा सा कर लें डिस्कस. तो स्टेप्स टू ऐड ए फाइल टू रिसोर्सेज, तो एक फाइल को रिसोर्सेज में किस तरह से हम ऐड करते हैं. तो टीचर जो है वो स्लेट में लॉगिन होने के बाद वो जाएगा और रिसोर्सेज टूल में और ऐड लिंक में वो अपनी फाइल्स जो हैं वो अपलोड कर देगा, और अपलोड करने के लिए ब्राउज बटन से वो अगर वो फाइल जो है उसके उसी सिस्टम के अंदर है, कंप्यूटर के अंदर है या नेटवर्किंग में कहीं पड़ी हुई है, तो वो ब्राउज करके वो लोकेशन जो है आइडेंटिफाई करेगा, फाइल तक पहुंचेगा, और फिर उसके बाद उसकी फाइल की डिस्क्रिप्शन देगा, और अगर उसके बारे में कोई कॉपीराइट स्टेटस डिफाइन करना है या ऑलरेडी उसके कोई कॉपीराइट्स हैं, तो वो वहाँ पे कॉपीराइट्स परमिट करेगा या उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन या स्टेटमेंट देगा. इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि जब स्टूडेंट इसको डाउनलोड करे, इसको यूज़ करे, तो उसको इन कॉपीराइट्स का ख़ास ख्याल रखना चाहिए. तो इस कॉपीराइट में वो डिस्क्रिप्शन और सारी चीज़ें जो हैं वो इसलिए लिखी जाती हैं ताकि इसका जो है वो गलत इस्तेमाल ना हो, मिसयूज़ ना हो. तो स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर हम
जो है इन रिसोर्सेज को। तो स्टूडेंट्स के लिए भी यही एडवाइस होती है कि जब वो अपने वर्क एरिया में जाते हैं और उन्होंने कोई उनको असाइनमेंट दी गई है, कोई भी काम दिया गया है, तो अगर वो अपलोड या बाद औक़ात CR को जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको टीचर जो है वो USB के ज़रिए या किसी और ईमेल के थ्रू उसको सेंड कर देते हैं, तो वो बाकियों को उसने शेयर करना होता है, तो वो इस तरह से उसको अपलोड करता है फाइल बाय फाइल या फोल्डर बाय फोल्डर या जिप फोल्डर या जिस तरह भी। तो फिर हर फाइल या हर डॉक्यूमेंट जो उस फाइल के अंदर होता है उसके बारे में उसने डिस्क्रिप्शन देनी होती है कि क्या इसको किस पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं और इसके कॉपीराइट्स क्या हैं, कितनी परमिशन है, फुल राइट्स हैं, कॉपी कर सकते हैं, रिट्रीवल में रख सकते हैं, प्रिंट करके खुद यूटिलाइज कर सकते हैं, दूसरों को पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते। तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड। तो स्टूडेंट्स अकाउंट के बारे में हमने डिस्कस किया कि अकाउंट चेंज कैसे करते हैं, और जब आप अकाउंट चेंज करते हैं तो फिर उसके बाद जो है उस प्रोसीजर को, तो अकाउंट चेंज की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ताकि आपकी सिक्योरिटी जो है वो आपका कोई अकाउंट हैक ना हो जाए, आपका कोई अकाउंट मिस यूज़ ना कर सके। और इसी के साथ एसोसिएटेड मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि जब आप लॉग आउट होने लगते हैं तो लॉग आउट होने से पहले आप अपने जितने आपने ओपन की हुई हैं सब विंडोज़ वो सब प्रॉपरली उनको आप क्लोज करें, तमाम ऑप्शंस को क्लोज करें, ताकि आपकी सिक्योरिटी जो है वो प्रीवेल रहे। तो अकाउंट में माई अकाउंट डिटेल्स में ये इस किस्म की डिटेल्स हैं जो हम दे सकते हैं, हाँ, जो आमतौर पे स्टूडेंट से रिक्वायर होती है। ये वो अकाउंट डिटेल है जो कर सकते हैं। यहाँ से आप मॉडिफाइड डिटेल से हम करने के बाद यहाँ हम ये अपना ईमेल अकाउंट, उसके बाद अपना जो करंट अकाउंट जिस पे हम ऑलरेडी फंक्शन कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा जाता है, टाइप किया जाता है। फिर उसके बाद जो न्यू पासवर्ड अगर क्रिएट करना हो वो, और उसके बाद दोबारा वही न्यू पासवर्ड, ताकि वेरीफाई न्यू पासवर्ड हो जाए। तो आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द न्यू पासवर्ड उसके बाद जो है ये अपडेट डिटेल्स। और अगर आपका इरादा बदल गया कि नहीं, यू डू नॉट वांट टू चेंज योर पासवर्ड, यू डू नॉट वांट टू चेंज योर इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड, तो फिर आप ये चेंजेस को कैंसिल यहाँ से कर सकते हैं। तो दिस प्रोग्राम इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली। तो स्टूडेंट, होम, व्हाट इज़ होम in Slate? This is customizable tool. This is in fact home is the page which can also be known as a landing page. Landing page is क्यों कहते हैं? This is the first thing you see, you want to know, you want to learn. आप किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं, उसका सबसे पहली चीज़ जो आपको नोट करनी होती है वो होम पेज है। होम पेज के ऊपर ही बाद जो है अक्सर औकात जो है वो न्यूज़ चल रही होती हैं, अपडेट चल रहा होता है, अनाउंसमेंट्स चल रही होती हैं, या कोई और कोई एक्टिविटी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जा रही होती है। जैसे एडमिशन के सिलसिले में, एडमिशन का जब सीज़न होता है तो एडमिशन्स के बारे में यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, जो पॉपअप है, वो आपको नज़र आते हैं और वो बार बार आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बाद औक़ात उस पेज के ऊपर वो एक स्टिकी सी लगाई जाती है जो कि तकरीबन आपको जो जितना भी उसके साथ टाइमर सेट हो उस टाइम के लिए वो लाजमी, जैसे आप होम पेज पे जाते हैं, अगर आप उसको एस्केप ना करें तो आपको जितना भी टाइमर लगा उतने टाइम के लिए उसको पढ़ना पड़ता है। तो होम पेज इन शॉर्ट is the page of landing.
एक ऐसा टूल जिस पे सबसे पहले आप लैंड करते हैं, जिस सबसे पहले जो आपको देखनी पड़ती है. It is most frequently used such as recent announcements, recent discussion forums, work site information अगर कोई है that is shared here. So every course has a separate tab और इसमें होम पेज पे जितने कोर्सेज हों उनके टैब जो है वो डेवलप किए जाते हैं और शेयर किए जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई कोर्स है जिसके बारे में हमने, जिसका मैंने बताया कि यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज के सेपरेट टैब होते हैं. अगर किसी कोर्स का टैब है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिस तरह लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एक कंप्यूटर का कोर्स हो तो वो उसका भी यहाँ पे शो हो रहा होगा. अब आप ये देखें, इसमें जो होम पेज के ऊपर जहाँ पे ये हमें जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त नज़र आ रही है, ये मोर के अलावा द फर्स्ट वन इज़ माई वर्क स्पेस, BASF सोसाइटी. ये स्टूडेंट्स की कोई अगर सोसाइटी उस यूनिवर्सिटी में चल रही है, आप उसकी एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हैं, डिटेल देखना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट बॉडी जो है, आमतौर पे ये जो स्टूडेंट बॉडी है ये स्टूडेंट की अपनी बनाई होती हैं अंडर द अम्ब्रेला, अंडर द सुपरविजन एंड द गाइडेंस ऑफ द टीचर्स. और जब ये बनाते हैं तो उसकी तमाम एक्टिविटी, उसका प्रेसिडेंट, उसका जनरल सेक्रेटरी, उसका फाइनेंस सेक्रेटरी, उसके तमाम जो ओहदेदारान हैं, वो जो एक्टिविटीज़ करते हैं उनको एक परमिशन दी जाती है कि वो स्लेट की एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू अपनी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे शेयर करते हैं. तो अगर आप एज ए यूज़र, एज ए पार्टिसिपेंट, एज स्टूडेंट इन एक्टिविटीज़ को आप जानना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करके तमाम एक्टिविटीज़ को पढ़ सकते हैं. मिसाल के तौर पे अगर हमें ये मालूम करना हो कि क्या इस वीकेंड पे जो बैस जो है या सोसाइटी जो है कोई एक्टिविटी कराना जा रही है, आमतौर पे वीकेंड पे प्रोग्राम करवाए जाते हैं या मिड सेमेस्टर में या एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम के बाद कोई एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती है, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है. इसी तरह फिर उसके बाद ये कोर्स हैं, कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं. जैसे ये बिजनेस मैथ्स का कोर्स है जो मैनेजमेंट साइंसेज में ऑफ़र हो रहा है. इसी तरह फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का कोर्स है जो यहाँ पे ऑफ़र हो रहा है. इसी तरह IT एंड बिजनेस है जो यहाँ पे ऑफ़र हो रहा है. तो ये वो चीज़ें हैं जो जितने भी कोर्सेज ऑफर्ड हों उनके यहाँ पे ये होती है. अब जैसे ही इसको हम इस कोर्स को क्लिक करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये हमारे सामने आ जाती है. साइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, उस कोर्स का नाम, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये उसका कोर्स कोड और ये जो है उसका जो भी उसका कोर्स कोड और ईयर ये दिया हुआ है. उसके बाद इस कोर्स से रिलेटेड कोई रिसेंट अनाउंसमेंट जो है, यहाँ ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ. अनाउंसमेंट्स अगर ये है कि व्यूइंग अनाउंसमेंट फ्रॉम द लास्ट 10 डेज, पिछले 10 दिनों में क्या क्या अनाउंसमेंट हुई हैं. अगर आप छुट्टी पर थे, अगर आपको मौका नहीं मिला स्लेट को विज़िट करने का, स्लेट को ओपन करने का, तो आप यहाँ से उनकी डिटेल्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं. मिसाल के तौर टीचर ने टाइम टू टाइम कोई असाइनमेंट दी या कोई डिस्कशन की या उसने कुछ चीज़ें आपसे रिक्वायर की, लास्ट डेट आप अनाउंस की, तो वो दैट कैन बी व्यूड फ्रॉम हेयर. तो देयर आर करंटली नो अनाउंसमेंट एट दिस लोकेशन. अगर कोई अनाउंसमेंट ना हुई हो तो फिर यहाँ पे ये मैसेज जो है अपीयर होता है. और अगर कोई न्यू मैसेजेस हैं देखना चाहते हैं तो आप ये न्यू मैसेज को आप क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं. और अगर कोई न्यू मैसेज नहीं है तो यहाँ पे ये नन लिखा हुआ है. तो मैसेज सेंटर नोटिफिकेशन, ये यहाँ पे मैसेज सेंटर नोटिफिकेशन है इसमें. तो स्टूडेंट्स इसी तरह आप किसी और मसलन ये IT से रिलेटेड एक कोर्स है
इसको क्लिक करके आप आईटी से रिलेटेड कोर्स के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन जो है आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और जो एक्टिविटी आपकी तरफ रिक्वायर्ड है वो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं। सिलेबस, तो टॉप ऑफ द स्क्रीन क्लिक द टैब फॉर द कोर्स यू आर टेकिंग। जिस तरह ये मैंने आपको यहाँ पे ये करके दिखाया। तो यहाँ जिस कोर्स के सिलेबस के बारे में आपकी इंटरेस्ट है, जो आपने रजिस्टर कराया, उसको आप पढ़ सकते हैं। क्लिक द टैब फॉर द कोर्स यू आर टेकिंग। उसके बाद सिलेबस, सी ए लिस्ट ऑफ द मटेरियल्स रिलेटेड टू द सिलेबस। तो अब देखें क्या क्या मटेरियल जो है वो, या कोई नई चीज़ जो है उसमें नया मैसेज या न्यू इन फोरम या कोई और चीज़ अनाउंसमेंट है या कोई चीज़ यहाँ पे ऐड हुई है, तो उसको आप देखें। तो see a list of the material related to the syllabus. You can browse through the available material. Click the name of the syllabus. अब इसको जो है उसमें ऑप्शन होगा, अगर पीडीएफ का आइकॉन बना हुआ है तो वो पीडीएफ में खुलेगी, अगर वर्ड का आइकॉन बना हुआ है तो वो वर्ड में फाइल खुलेगी। जो एप्लीकेशन इसके साथ लगी हुई हो वो उसमें होती है। तो इट विल ओपन द डॉक्यूमेंट इन द रेलेवेंट एप्लीकेशन सच एज वर्ड और पीडीएफ, बशर्ते कि आपके सिस्टम में ये प्रोग्राम इंस्टॉल ज़रूर हो। अनाउंसमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनाउंसमेंट्स, फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्टर्स जो है वो डिफरेंट किस्म की अनाउंसमेंट्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए कर सकता है ताकि उनको अपडेट किया जा सके। मिसाल के तौर पे अगर क्लास कुछ टाइम लेट होनी है या क्लास नहीं होनी या कोई एक्सटेंडेड क्लास होनी है या कोई टॉपिक के बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो टीचर शेयर करना चाहता है बिफोर द क्लास, आफ्टर द क्लास, तो वो कर सकता है। या क्लास के दौरान उसको कोई ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ मटेरियल रह गया वो उसने उसके बारे में कोई अनाउंसमेंट करनी है, तो दैट कैन आल्सो बी डन हेयर। इसके अलावा अगर टीचर ने कोई रीडिंग असाइन करनी है, उससे रिलेटेड असाइनमेंट अनाउंसमेंट हो सकती है, या टीचर ने कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है, आमतौर पर ग्रुप डिस्कशन या जिसको हम कहते हैं कि कोई केस स्टडीज़ के बारे में कोई डिटेल डिस्कस करनी है, तो वो टीचर जो है वो यहाँ पे अनाउंस कर सकता है। या कोई लिंक टीचर ने शेयर करना है ताकि आप किसी वीडियो के बारे में आप उसको देख कर आएँ घर से, वो यहाँ पे शेयर हो सकती हैं। और अगर ख़ास तौर पे ये अनाउंसमेंट जो हैं आम तौर पे केस स्टडीज़ के बारे में बड़ी पर्टिकुलर होती हैं, क्योंकि केस स्टडीज़ में कुछ पर्सपेक्टिव्स जो है वो टीचर स्टूडेंट के साथ शेयर करता है कि इन पर्सपेक्टिव्स को आप सामने रखें जब आप केस स्टडी को पढ़ें। तो जब आप केस स्टडीज़ को पढ़ते हैं, उनको तैयार करते हैं, तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि आपसे टीचर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अनाउंसमेंट एक बहुत ही यूज़फुल फोरम है, एक बहुत ही यूज़फुल इसके अंदर फैसिलिटी है स्लेट के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अनाउंसमेंट जो है जब स्लेट पे की जाती है तो क्या इसको सारे लोग शेयर करेंगे, क्या ये अनाउंसमेंट सबके लिए? इसकी आमतौर पे 3 कैटेगरीज हैं। क्या ये सबके लिए है, ऑल? अगर ऑल के लिए है तो इसका मतलब है कोई एक्सक्लूड नहीं है। पब्लिक, क्या ये कम्युनिटी के लिए है, स्टूडेंट कम्युनिटी, कौन कौन सी स्टूडेंट कम्युनिटी, बाय ग्रुप या खास ग्रुप के लिए? अब ये यहाँ ग्रुप से क्या हो रहा है, यहाँ ग्रुप जो है वो टीचर खुद भी बना सकते हैं। आमतौर पे ट्यूटोरियल पर्पस के लिए ग्रुप बनाए जाते हैं। नंबर 2, असाइनमेंट बाज़ औक़ात ग्रुप्स में दी जाती है। नंबर 3, बाज़ औक़ात एक ग्रुप को
दूसरे ग्रुप से कांटेक्ट करने के लिए कहा जाता है फॉर द पर्पज ऑफ क्रॉस ग्रुप डिस्कशंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंटायर क्लास। तो बहरहाल टीचर जो भी अनाउंसमेंट करता है वो उसमें स्पेसिफाई करता है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन जो है ये इसको पब्लिक करना है, इसको सबके लिए करना है, इसको स्पेसिफिक ग्रुप के लिए है। बाद औक़ात टीचर की ऑब्जर्वेशंस होती हैं कुछ ख़ास स्टूडेंट ग्रुप के बारे में, तो वो उनको सिर्फ एड्रेस करना चाहता है, तो उसने कुछ बनाए होते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक उन ग्रुप्स को वो एड्रेस करता है। तो स्टूडेंट्स कैन व्यू अनाउंसमेंट्स बाय क्लिकिंग ड्रॉप डाउन एरो बॉक्स, और उसके लिए तरीक़ाकार वही है, लॉग इन स्लेट, एक्सेस योर वर्क साइट विच यू हैव ऑलरेडी लिंक्ड, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, और उसके बाद जो है आप वर्क साइट के बाद आप अनाउंसमेंट्स को क्लिक करते हैं। उसके बाद आप उसको जो भी रेलेवेंट, अगर रेलेवेंट है तो आप डाउनलोड अटैचमेंट जो भी है उसको आप डाउनलोड करते हैं, आप पढ़ते हैं, और जो उसमें रिक्वायरमेंट हो आपसे उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट बटन टू द व्यू नेक्स्ट अनाउंसमेंट क्लिक प्रीवियस बटन, अगर आप नेक्स्ट उसके बाद फर्दर आप कोई अनाउंसमेंट फर्दर एक से ज़्यादा अनाउंसमेंट्स हैं तो आप नेक्स्ट 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 करके इस तरह उस पर जा सकते हैं, या प्रीवियस में जाना हो तो आप प्रीवियस पे जा सकते हैं। तो रिटर्न टू लिस्ट अनाउंसमेंट लिस्ट विल ओपन, तो आप पूरी लिस्ट को ओपन भी इसी तरह क्लिक करके वो कर सकते हैं। जैसे इसमें आप देखें ये अगर आप इसमें ये देखें ये जो है अनाउंसमेंट्स यहाँ पे ये होम, उसके बाद सिलेबस, और सिलेबस में आप फिर इसी तरह शेड्यूल हो गया, अनाउंसमेंट्स, ये अनाउंसमेंट, तो यहाँ से आप अनाउंसमेंट से आप जा सकते हैं। उसके बाद आप देखें ये एक कोर्स की डिटेल जो है वो खोली हुई है, इट इज़ रिलेटेड टू सोशियोलॉजी, और इसमें सब्जेक्ट में आप देख लें ये अनाउंसमेंट्स, जब हमने ये नीचे ये व्यू में ड्रॉप डाउन एरो में जब हमने सिलेक्ट किया ऑल, तो ये ऑल जो है ये अनाउंसमेंट्स जो है वो खुल गई, और ये जो है अनाउंसमेंट्स फ्रॉम द लास्ट 365 डेज, ये पूरे ये दिखे हैं। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ये व्यूइंग, क्या आप कितनी आइटम यहाँ आप कंफर्म कर सकते हैं कि कहीं इसके बाद भी हैं या नहीं। तो टोटल 18 आइटम्स हैं, जिनमें से ये 10 ओपन है। लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आउट ऑफ 18 आइटम्स आर ओपन्ड और लिस्टेड। इनको फर्दर इनकी डिटेल में हम जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस सब्जेक्ट के नीचे है लास्ट क्विज, तो ये किसने सेव किया उसका नाम है, ऑब्वियसली ये टीचर का नाम है क्योंकि उसने दिया। मॉडिफाइड डेट में 1 मई 2012 1:13 PM, और ये जो फॉरवर्ड फॉर द कोर्स ऑफ सोशियोलॉजी, और यहाँ ये सेक्शंस जो हैं ये मेंशन है कि सोशियोलॉजी का सेक्शन M और सोशियोलॉजी का सेक्शन N, ये 2 सोशियोलॉजी के सेक्शंस हैं जिनके लिए ये फरानाज ने ये लास्ट क्विज जो है वो दिया है। उसके बाद टेस्ट अनाउंसमेंट फॉर एग्जांपल फरानाज और सोशियोलॉजी, और ये टेस्ट अनाउंसमेंट है कि
10 अगस्त, और इसको जब पढ़ेंगे तो इसकी डिटेल जो है वो सामने आ जाएगी कि इसमें टेस्ट के बारे में इस मैम ने क्या डिटेल्स जो हैं वो रखी हुई हैं। फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड वीडियो, यहाँ जो है वो बताया गया है कि ये कहाँ से होगी, साइट से, और उससे इस वीडियो को या तो लिंक में रखा जाता है, आप देख सकते हैं, डाउनलोड करके आप कर सकते हैं, या बाद औक़ात लिंक में साइट का एड्रेस होता है जिस साइट पे ये वीडियो अवेलेबल हो। उसके बाद है सेक्शन एम की प्रेजेंटेशन है जो कि 18 अप्रैल को है, बहुत मीनिंगफुल है, और ये जो है प्रेजेंटेशन जो है ये सोशियोलॉजी की ये 24 अप्रैल को है। तो यहाँ पे ये टीचर जो हैं ये बताना चाह रही हैं कि क्लास जो है वो इन डेट्स को प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर हो जाए। इसके बाद फ्राइडे क्विज टॉपिक्स, ये उसका क्विज का टॉपिक है, टॉपिक्स होंगे इसके अंदर जब हम खोलेंगे। इसी से फाइनल पेपर का पैटर्न जो है यहाँ पे बताया गया है टीचर ने, ताकि स्टूडेंट जो है वो अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकें, एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, और उन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करें जो सिलेबस में मेंशन्ड हैं। इसी तरह फाइनल पेपर पैटर्न के बाद फिर सेक्शन एम प्रेजेंटेशन शेड्यूल फॉर 17 अप्रैल, ये इसकी सारी डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में। इसी तरह असाइनमेंट, ओपन डेट फॉर टेस्ट, ये एक असाइनमेंट, ओपन डेट फॉर टेस्ट, ये उसकी डेट। उसके बाद असाइनमेंट, ओपन डेट फॉर फाइनल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन सेक्शन एम। तो स्टूडेंट्स ये इस किस्म की डिटेल जो है ये टीचर जो है वो आपके साथ शेयर करता है थ्रू अनाउंसमेंट्स। रिसोर्सेज, ये इस लिस्ट में हमने ये जो है रिसोर्सेज, अनाउंसमेंट्स और अनाउंसमेंट्स के बाद ये रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स रिसोर्सेज में क्या कुछ होता है, व्यूइंग एंड ओपनिंग फाइल्स एंड रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज को क्लिक करते हैं ऑफ कोर्स आफ्टर फॉलोइंग द इनिशियल स्टेप्स कि हम स्लेट पे लॉगिन हुए, पासवर्ड, लॉगिन आईडी, यूजर नेम हमने एंटर किया, एंड देन वी रीच द रिसोर्सेज। सो व्हेन यू क्लिक रिसोर्सेज to view the list of sites, resources and the folders containing resources, we click resources, और उसमें resources जो हैं वो इसी तरह listed होते हैं organized way से, which can be viewed and read. Browse through the available material, जो कुछ material हमें दिया हुआ है हम उसको click करके हम we can see, we can browse through it या सिंपली, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्शन से भी बाद औक़ात पता चल जाता है, जब क्लास आप अटेंड करते हैं टीचर उसमें मेंशन कर देता है, तो बाद औक़ात उसकी डिस्क्रिप्शन को देख के पता लग जाता है। उसके बाद टू व्यू ए रिसोर्स क्लिक द नेम ऑफ द रिसोर्स, जैसे ये पीछे कुछ नाम बताए गए थे अनाउंसमेंट्स में, तो इसी तरह रिसोर्सेज में भी उसकी जो है डिस्क्रिप्शन होती है, उसका नेम होता है, तो वही वी कैन व्यू, वी कैन ब्राउज द रिसोर्सेज। इसी तरह लेकिन इसको ऑब्वियसली खोलने से पहले उसकी कॉपीराइट स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, उसको एग्री करते हैं, अगर एग्री नहीं करते तो देन द रिसोर्स व्हिच वी आर गोइंग टू ओपन इट मे नॉट वर्क। तो स्टूडेंट्स इसके बाद व्यूइंग एंड ओपनिंग फाइल्स। सो रिसोर्सेज में जब हमने ये फाइल जो है क्लिक फोल्डर टू व्यू इट्स कंटेंट्स, और क्लिक दी ये जो ब्लैक प्लस साइन या माइनस साइन टू द लेफ्ट ऑफ द टाइटल, जो भी टाइटल दिया हुआ उसके लेफ्ट पे जब हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये प्लस माइनस साइन जो भी उसको एक्सपैंड करते हैं ऑल द फोल्डर्स, एंड जब हम एक्सपैंड करते हैं तो वी कैन सी द कंटेंट।
So after looking at the contents, after reviewing the contents, we can understand the message from the utilization of resources. Navigate between the resources and the folders using location. लोकेशन को यूज़ करके हम उसमें ब्राउज कर सकते हैं, उसमें मूव इन कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा. So click a folder name in the path to go to that folder. उस फोल्डर तक पहुंचने के लिए हम उसको क्लिक करते हैं इनसाइड, उसके अंदर दाखिल होने के लिए. So you can also click the icon of a folder with an arrow in it to go one level back. तो नॉर्मल जिस तरह से एरो शो होते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड, उन एरोस की मदद से हम कर सकते हैं. ये मूडल में भी एरोस जिस तरह थे, तो यहाँ भी इसी किस्म के एरोस जो है वो शो होते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ दोज एरोस वी कैन प्रोसीड फर्दर, वी कैन कम बैक एटसेट्रा. रिसोर्सेज कैन बी सॉर्टेड बाय टाइटल. अगर हम टाइटल को क्लिक करें और तो हम क्लिक करने के बाद टाइटल को क्लिक करें तो वो एक ऑप्शन आता है कि क्या हम इसको टाइटल वाइज सॉर्ट करना चाहते हैं, साइज वाइज इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, या डेट व्हेन इट वाज मॉडिफाइड उसके हिसाब से इसको करना चाहते हैं. इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? ये रीडर की प्रायोरिटीज़ होती हैं कि क्या वो सबसे आखिरी जो मॉडिफाइड फाइल आई है उसको पहले पढ़ना चाहता है, सबसे पहला आया है जो मैसेज उसको, जो कंटेंट या रिसोर्स अपलोड हुआ है उसको पहले पढ़ना चाहता है. ये डिपेंड करता है. इसमें कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि जो लास्ट मॉडिफाइड वर्जन है उसको पढ़ेगा पहले या फर्स्ट मॉडिफाइड वर्जन है उसको पढ़ेगा. ये डिपेंड करता है कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है और फाइल्स के दरमियान लिंकेज क्या है. तो क्या उसके लिए जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, या जो मॉडिफाइड लास्ट इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो ये डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ द रीडर और द स्टूडेंट्स. तो इसी तरह इसकी जो सीक्वेंस है उसको रिवर्स भी किया जा सकता है, उसको ऑप्शन को रीसेट भी किया जा सकता है. ये सारी चीज़ें. असाइनमेंट्स. स्टूडेंट्स, असाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द स्टडीज़. अगर असाइनमेंट ना दी जाए तो स्टूडेंट कोर्स में उनकी लर्निंग जो है वो वीकन हो जाती है. और असाइनमेंट एक सोर्स है ताकि जो टीचर ने आपको पढ़ाया है आप उसके नॉलेज को हमेशा अपडेट करते रहें. अब अपडेट करते हैं इसको, आप अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए आप असाइनमेंट आपको दी जाती हैं. टू वर्क ऑन एन असाइनमेंट, ओपन द साइट फॉर द कोर्स और द प्रोजेक्ट विद द असाइनमेंट. क्लिक असाइनमेंट्स, क्लिक नेम ऑफ द असाइनमेंट टू ओपन. बाद का असाइनमेंट हर लेक्चर से रिलेटेड असाइनमेंट होती है, लेकिन टीचर ये कहते हैं कि ये असाइनमेंट जो कि 4 लेक्चर से रिलेटेड 4 दफ़ा अपलोड हुई हैं, आपने इसको एक असाइनमेंट में कन्वर्ट करके लिखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो 4 डेज में 4 लेक्चर्स में वो कंप्लीट हुआ है और उससे रिलेटेड असाइनमेंट जो है वो बिल्ट होती रही है. और फाइनल जो है आपकी सबमिशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है. तो स्टूडेंट इसके बाद असाइनमेंट में मिसाल के तौर पे ये एक कोर्स है जिसको हम कहते हैं सर्किट एनालिसिस. सर्किट एनालिसिस में जो असाइनमेंट दी गई है वो है असाइनमेंट नंबर 1. इसका स्टेटस क्या है? इसको नॉट स्टार्टेड फॉर साइट, ओपन June 30 June 2011 at 12 PM और ड्यू डेट इसकी 8 जुलाई, यानी एक हफ्ता दिया जा रहा है स्टूडेंट को. 5 बजे तक इन्होंने ये असाइनमेंट जो है ये जमा करानी है.
और ये इसी तरह इस स्लेट पे ही अपलोड इसका सलूशन जो है वो असाइनमेंट का वो करना होता है टीचर ने। और इसके बाद जब असाइनमेंट जमा हो जाती हैं तो टीचर इसको इवेल्युएट करके ग्रेड करके रिकॉर्ड या तो अपने पास रखता है या स्टूडेंट के साथ शेयर करता है। और उसके अलावा उसमें जो कमेंट्स हों जो चीज़ें वो उसमें वो दी जाती हैं। तो ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ये रिसोर्सेज और असाइनमेंट। इसमें एक बात का ख्याल रखना है, द असाइनमेंट मस्ट हैव स्टेटस ऑफ ओपन। अगर ओपन का स्टेटस नहीं है तो इसका मतलब है अभी टीचर ये नहीं चाह रहा कि स्टूडेंट इसको देख सके या इसको कर सके। तो स्टूडेंट को करने की इजाज़त उस वक्त मिलती है जब यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए ओपन। तो अगर ये must have status of open for a student be able to work on it. So if you attempt to submit an assignment, pass the date, time, the following message will display. The close date of the assignment has passed. You can no longer submit your assignment. Answer to the questions of assignment. तो ये एक टाइम मैनेजमेंट का एक बेहतरीन ज़रिया है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर स्लेट के ज़रिए। स्लेट लुक्स मोर सिंपल दैन मूडल टू वर्क ऑन असाइनमेंट। तो ये इसमें इंस्ट्रक्शंस टू ऐड एन अटैचमेंट, क्लिक द ऐड अटैचमेंट्स, अटैच लोकल फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर। अगर आप वो असाइनमेंट जो है आपने बना के रखी हुई हैं, आप कंप्यूटर में किसी ड्राइव में पड़े हैं, किसी फोल्डर में है, सब फोल्डर में है, तो वहाँ से आप ब्राउज करके इसको जा सकते हैं। या फिर कोई वेबसाइट से रिलेटेड है, टाइप द URL इन द बॉक्स प्रोवाइडेड, जो भी बॉक्स वहाँ पे है वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ या इसको आपने पहले से सेव किया हुआ है तो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है, जब वेबसाइट URL आप टाइप कर रहे हों या उसमें बॉक्स में आप रिक्वायर्ड बॉक्स में आप लिख रहे हों, तो उसमें इन चीज़ों से http:// से अवॉइड करना है। तो इसको किस तरह लिखना है, इसको इस तरह से लिखना है। उसके बाद आफ्टर द अटैचमेंट ऐड, तो इसके बाद अटैच एन आइटम फ्रॉम द रिसोर्सेज ऑलरेडी इन दिस कोर्स वेबसाइट। अगर ऑलरेडी वहाँ पे इस कोर्स का मटेरियल मौजूद है, वहाँ से भी आप इसको सिलेक्ट रिसोर्स से आप इसमें अटैच कर सकते हैं। उसके बाद फिर अटैच करते हैं next to the appropriate resource, और जब once it is attached then we finish. It may take couple of seconds or even just a few seconds, 30 seconds, 20 seconds, sometimes 1 minute, depending upon the size of the attachment which we are doing. तो फाइल के साइज के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितना इसको टाइम लगेगा। अटैचमेंट के बाद फिर उसके बाद फिनिश, और यही प्रोसीजर जो है ये स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट जो है वो कर लेते हैं, करके उन्होंने रख दी है, अगर स्कैन्ड अगर टीचर की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है कि हैंड रिटन हो, तो हैंड रिटन भी स्कैन करके अब हो सकती है। अब जैसे आजकल विंडो फ़ोन है तो विंडो फ़ोन से स्कैनिंग फैसिलिटी जो है वो हो जाती है। इसमें कई ऐप्स होते हैं जो डाउनलोड करके हम उन ऐप्स को अप्लाई करते हैं, और हैंड रिटन असाइनमेंट भी बहुत खूबसूरत तरीके से स्कैन होके उसको अटैचमेंट में थ्रू स्लेट भेजा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी क्लास में देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इवन जिनको असाइनमेंट का पता होता है तो वो घर से भी करके अपने मोबाइल के अंदर रखते हैं, और
जैसे ही वो टीचर जो है बाद औक़ात होल्ड पे रखते हैं कि जी जब तक क्लास में अनाउंसमेंट ना हो, असाइनमेंट सबमिट ना हो जाए, सबमिट नहीं करनी। तो जैसे ही टीचर की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलता है, अनाउंसमेंट होती है, तो स्टूडेंट जो है वो फ़ौरन उसी अपने मोबाइल से ही, सेल फोन से ही वो असाइनमेंट जो है सेंड कर देते हैं। बाद औक़ात स्टूडेंट जो है वो असाइनमेंट मिस होने की सूरत में या टीचर को कन्विंस करने के लिए अपने सेल फोन शो करते हैं कि ये देखें सर, हमने आपको असाइनमेंट जो है ये सबमिट की हुई है। अगर आपके पास मिसप्लेस हो गई है तो यू कैन सी दिस असाइनमेंट फ्रॉम माय सेल फोन। तो ये स्टूडेंट से ये जो है अच्छा, बाद औक़ात ऐसा होता है कि असाइनमेंट सबमिट होती है लेकिन टीचर उसको अपने कमेंट्स के साथ वापस भेज देते हैं कि ये असाइनमेंट जो है इट इज़ नॉट अप टू द मार्क, अप टू द रिक्वायर्ड फॉर्मेट और स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। मेरा ख्याल है कि ये स्टूडेंट की एक गुड लक है कि अगर टीचर ऐसे रिमार्क्स दे के उसको रिव्यू करने का चांस दे दे, तो फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, उस असाइनमेंट को ठीक करके उसकी रिवाइज कॉपी दोबारा से अपलोड करते हैं, उसमें अटैच करते हैं और उसके बाद फिर करने के बाद या फिर वो उसी पे ही कर रहे होते हैं, तो इन द मीन टाइम कोई और उनकी असाइनमेंट, कोई और एक्टिविटी आ जाती है, तो देयर इज़ फैसिलिटी ऑफ सेविंग ए ड्राफ्ट एज वेल। यही काम जो है वो टीचर भी कर सकते हैं। अगर टीचर जो है वो असाइनमेंट वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं तो इस दौरान कोई और एक्टिविटी आ जाती है तो दे कैन सेव देयर असाइनमेंट एज ए ड्राफ्ट। उसके बाद अगर ऐसा हो तो फिर स्टेटस आता है इन प्रोग्रेस। तो स्टूडेंट आजकल बहुत अपडेटेड है, तो वो उस एक्टिविटी को समझ आता है कि स्टिल द वर्क इज बीइंग डन। उस वक्त तक ये असाइनमेंट ओपन नहीं होगी जब तक कि उधर से सबमिट प्रेस नहीं कर दिया जाता है। तो जब भी ये करेक्शन के बाद प्रीव्यू के बाद फिर एक नए फॉर्मेट में जब असाइनमेंट सबमिट होती है तो उसके बाद जो है इसको व्यू किया जा सकता है। ये एक स्क्रीन शॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें देखें असाइनमेंट नंबर 1 लिखा हुआ है टाइटल, और इसकी ड्यू डेट है जुलाई 2011 5 PM एंड द स्टेटस नॉट येट स्टार्टेड, ग्रेड पॉइंट्स मैक्सिमम 25 मार्क्स, और इंस्ट्रक्शन इसकी ये है कि री सबमिशन इज अलाउड। अगर री सबमिशन अलाउड ना हो तो देन the copy is submitted once only and the resubmission, बाज़ों का स्टूडेंट खुद फील करता है कि उसकी पुरानी असाइनमेंट जो है वो ठीक नहीं है, उसने पहले जो कॉपी सबमिट की है it was incomplete, something was missing या something was written incorrectly या any other reason, कोई भी वजह हो, तो स्टूडेंट जो है वो उसको दोबारा से रिव्यू करके उसको, अगर ये लिखा हुआ है कि सबमिशन इज अलाउड तो इसका मतलब है री सबमिशन हो सकती है, पुरानी कॉपी वापस लेके उसको वो कर सकता है। अच्छा जी, सबमिशन। उसके बाद असाइनमेंट टेक्स्ट, ये असाइनमेंट टेक्स्ट, दिस असाइनमेंट अलाउज सबमिशंस यूजिंग बोथ द टेक्स्ट बॉक्स बिलो एंड द अटैचमेंट डॉक्यूमेंट्स। यानी अटैचमेंट में भी भेजी जा सकती है या टेक्स्ट के अंदर कॉपी कर दी जाए वो भी भेजी जा सकती है। इसमें इवन जितना सॉफ्टवेयर एडवांस हो गए हैं और जितने एड-इन्स में एक दूसरे के साथ सॉफ्टवेयर हैं, देयर आर सो मैनी वेज टू सेंड द असाइनमेंट इवन थ्रू दिस बॉक्स, थ्रू टेक्स्ट बॉक्स। प्रिंट स्क्रीन से उसकी स्क्रीन को उसको फिर ट्रिमिंग करके उसकी करके तो इसमें वो डायरेक्ट भी भेजी जा सकती हैं या थ्रू टाइपिंग या
ऑलरेडी कहीं इसको वर्कआउट किया गया है, वहाँ से इसको यहाँ पे लाना है, तो इट कैन बी सिंपली डन। और अगर ऑलरेडी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, फाइल की फॉर्म में असाइनमेंट कर दी गई है, तो ब्राउज बटन से, ये जो नीचे लिखा हुआ है ब्राउज, इस ब्राउज से हम उसको कर सकते हैं। ये लिमिट लगी हुई है कि 5 फाइल से ज़्यादा आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। सिलेक्ट ए फाइल फ्रॉम कंप्यूटर 5 टोटल, नॉट मोर देन 5। और सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम वर्क स्पेस और साइट। अगर आपने किसी साइट पे बाज़-औक़ात आप किसी जगह आपने अपना फोल्डर बनाया होता है, आप मोबाइल बहुत ज़्यादा रहना चाहते हैं, तो वो फोल्डर जो है कोई स्काई ड्राइव या कोई किसी और में आप कोई अपना फोल्डर डेवलप कर लेते हैं। तो याहू में जिसमें कुछ बच्चे जो है वो फोल्डर अपना बना लेते हैं, और फोल्डर में फॉर सिक्योरिटी रीज़न, ताकि जब भी कोई खुदा ना खासा उनका सिस्टम क्रैश कर जाता है, तो उनके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो मूविंग ड्राइव है, जो मूवेबल ड्राइव है, उसमें वो सेफ रहे। तो वहाँ से भी ये किया जा सकता है, असाइनमेंट को अपलोड किया जा सकता है। अच्छा, अगर तो इस बॉक्स के अंदर लिखी जा रही हैं, तो फिर इसमें ये स्टाइल, इसमें फॉर्मेटिंग, इसमें फॉन्ट, इसमें साइज और एवरीथिंग इज हियर। और अगर ये टेबल कोई रिलेटेड है, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, मैथमेटिकल फंक्शंस एंड so many other things, they can be done here. और अगर उसमें before you submit you want to preview that, this can be done. And during the working, if you come across some other task, some other assignment, you can save the draft and then you can submit it later. तो अगर आपने कोई अटैचमेंट यहाँ पे अटैचमेंट नहीं दी हुई, अभी तक अटैच नहीं किया हुआ, तो you can read the message like this, no attachment yet. So resubmitting a returned assignment, इसकी अगरचे मैंने डिटेल आपको बता दी है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ लिख भी दिया है। To resubmit an assignment returned to you, follow these steps. Click assignments, click the title of the returned assignment to resubmit. Returned assignment will say returned, ये होगा। तो returned को आप assignment, click assignment और उसके बाद returned, followed by the date and time returned, when it was returned in the status. ये इसके status में लिखा होगा कि ये assignment कब वापस हुई है। तो स्टेटस कॉलम ऑफ द असाइनमेंट टेबल में ये स्टेटस इसका क्लियर होगा। सो यू विल सी द ओरिजिनल असाइनमेंट एंड योर ओरिजिनल सबमिशन विद कमेंट्स ऑफ द टीचर ऑन द ओरिजिनल सबमिशन। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ मैंने लिख दिया ताकि आपको आपके नोट्स में ये हेल्पफुल हो। इन द बॉक्स एंटर बिलो फॉर सबमिशन, रीसबमिशन, enter below for resubmission, edit or paste your revised submission for the assignment, and then click resubmit or click save draft, जो भी whatever। ये जैसे ये मैंने बताया कि आप इसको if you want to submit, press submit, if you want to preview or save draft, this can be done, or if you think oh no, not yet, you are not ready yet, so then you can cancel it out। और अगर आपकी फाइल में ये कहीं किसी आपके सिस्टम में किसी ड्राइव पे ये चीज़ पड़ी हुई है, तो आप ब्राउज से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सबमिशन है। इसमें देखें, दिस असाइनमेंट अलाउज सबमिशन यूजिंग बोथ द टेक्स्ट बॉक्स बिलो एंड अटैच डॉक्यूमेंट्स। टाइप योर कमेंट्स
in the box below and use add attachment button to include other documents. Save frequently while working. So this you can do here. ये यहाँ पे resubmit, यहाँ पे ये पिछले में आप देखेंगे ये submit. Now this time it will be written as resubmit, and if you want to preview again you can. Save draft, cancel, whatever, this can be done from here. Checking a grade on the assignments. Checking grade on an assignment. So click assignments to see the title of your assignment and information about its status. Click the title of the assignment, and for more details, and you will see when your assignment was graded as well as the original instructions. The comments appear underlined. जो भी comments आम जिस तरह वर्क डॉक्यूमेंट में इंशाल्लाह किसी एक लेक्चर में आपको ये वर्ड डॉक्यूमेंट में कमेंट्स किस तरह लिखते हैं डॉक्यूमेंट्स में वो करके दिखाऊंगा. So comments appear underlined. Any additional comments will be at the bottom of the page. जो भी हम उसको, because comments के बारे में multiple option मौजूद होते हैं, आप उसको separate sheet पे भी convert कर सकते हैं. Once it is done, you just press done, and to return to the assignments main page, you may need to take further action अगर कोई है. After you have done the needed work, preview, resubmit your assignment or save it as a draft as we have done. तो बिल्कुल उसी तरह होगा, सिर्फ एक डिफरेंस होगा कि जब आप कोई असाइनमेंट फ्रेश फर्स्ट टाइम आप सबमिट कर रहे हैं एंड इट हैज़ नॉट बीन रिटर्न, तो आपके स्क्रीन शॉट में मैं दिखाता हूँ. स्क्रीन पे ये नीचे लिखा हो जिसको सर्कल किया हुआ है, ये सबमिट लिखा हुआ आएगा. और अगर टीचर ने इसको देखने के बाद कमेंट्स के बाद आपको रिटर्न किया है और आपने स्टेटस में चेक किया है कि इसमें ये रिटर्न है, तो फिर उसमें रीसबमिट का बटन आएगा और इस रीसबमिट के बाद फिर ये डन एंड डन. तो ये जनाब ये इट इज़ समथिंग अबाउट द असाइनमेंट. और जब ये ग्रेड हो जाएगी तो असाइनमेंट नंबर 1 रीसबमिट, ये टीचर के कमेंट हुए हैं. नंबर 1 ड्यू डेट जुलाई 8. नंबर ऑफ रीसबमिशन अलाउड, सिर्फ एक दफ़ा रीसबमिशन हो सकती है. एक्सेप्ट रीसबमिशन अंटिल 8 जुलाई 8. और स्टेटस ये 1 जुलाई को ये रिटर्न हुई है या होनी है. इसके बाद ग्रेड 10 out of 25. 10 out of 25. Instructions, resubmission is allowed. Assignment text, enter resubmission text below. इसमें आप ये कर सकते हैं. Original submission text with the instructor's comments inserted if applicable, अगर हो तो. Grade book. After grading the assignment, grades are posted in Slate. Select the appropriate work site. कोर्स नेम यानी वर्क साइट क्या है, आपका जो कोर्स नेम है उसको क्लिक करें टू चेक द ग्रेड्स. सिलेक्ट ग्रेड बुक विद इन द वर्क साइट ऑप्शंस एंड सी व्हाट ग्रेड हैज बीन गिवन टू यू. टाइटल असाइनमेंट नंबर 1. ये ग्रेड्स इन parentheses are not included in the course grade calculation. ये इंस्ट्रक्शन है. एंड हाउ मेनी मार्क्स हैज बीन असाइंड, 10 out of 20. इफ यू लुक एट द ग्रेड, ये ड्यू डेट इसकी ये थी, ये नंबर ऑफ असाइनमेंट, दिस वाज द नंबर ऑफ असाइनमेंट, एंड फ्रॉम विच कैटेगरी, दिस इज फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ असाइनमेंट्स. एंड कोर्स ग्रेड नॉट येट अवेलेबल, जैसे ही कोर्स आएगा. एंड
द ग्रेड रिपोर्ट फॉर, और ये किसके लिए है, फॉर दिस रोल नंबर एंड दिस नेम, अब्दुल मुईज खान। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। वेरी क्विकली व्हाट वी हैव डन टुडे, हमने आज साकाई स्लेट, साकाई लर्निंग एंड टीचिंग एनवायरनमेंट के कुछ वर्क साइट टूल्स के बारे में स्टडी किया। तो इसके वर्क साइट टूल्स में आफ्टर रिव्यूइंग द प्रीवियस लेक्चर हमने रिसोर्सेज को पढ़ा, अकाउंट्स को रिव्यू किया, होम पेज के बारे में डिस्कस किया कि होम पेज पे क्या कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, रीसेंट असाइनमेंट्स होती हैं, रीसेंट डिस्कशन फोरम, और वर्क साइट इंफॉर्मेशन होती है कि आपके काम के बारे में क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो रही हैं। तो जो जो कोर्सेज आप पढ़ रहे होते हैं आपकी वो वर्क साइट के ऊपर शो हो रहे होते हैं। तो वर्क साइट पे जिस कोर्स के बारे में आपकी क्यूरी होती, कंसर्न होती है, उसको क्लिक करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है। अगर कोई सिलेबस की बात है वो वहाँ पे लिस्ट, अनाउंसमेंट्स कोई होती हैं वो वहाँ पे शो होती हैं, और बाकी जो टीचर ने एक्टिविटीज़ किसी कोर्स के सिलसिले में अपलोड की हुई हैं वो डेट वाइज पूरा शेड्यूल जो है वो आपके सामने आता है। रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा, क्या क्या रिसोर्सेज किस तरीके से मल्टीपल फाइल्स वहाँ पे बाय नेम, बाय कॉपीराइट स्टेटमेंट, बाय डिस्क्रिप्शन वहाँ पे स्लेट के ऊपर अपलोड की जा सकती हैं। फिर ये कि हम रिसोर्सेज को सॉर्ट किस तरह कर सकते हैं, उनको हम बाय डेट मॉडिफाइड, बाय साइज और बाय सम अदर एग्जिस्टिंग ऑप्शन हम कर सकते हैं। इसके अलावा असाइनमेंट की हमने बात की, असाइनमेंट की सबमिशन, कमेंट्स के बाद उसकी रीसबमिशन की हमने बात की, और उसमें फिर ड्यूरिंग द वर्किंग ऑन द असाइनमेंट if you want to save the work which you have done so far and in the meantime you come across some other task, so after completing that task you can come back to the assignment, you can do it again, you preview, you modify, you amend and then you can resubmit। but इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको टीचर ने रीसबमिशन अलाउ किया हुआ हो। अगर टीचर ने रीसबमिशन अलाउ नहीं किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रीसबमिशन इज अलाउड, तो इफ इट इज रिटन एज रीसबमिशन इज नॉट अलाउड देन यू कैन नॉट रीसबमिट योर असाइनमेंट। तो स्टूडेंट, जब आपको असाइनमेंट रिटर्न होती है तो लिखा होता है स्टेटस में कि असाइनमेंट रिटर्न हो गई है, सही नहीं है, और फिर रीसबमिशन के बाद जब ग्रेड लगता है तो वो ग्रेड के बारे में भी आपको अपडेट अवेलेबल होती है, और ग्रेड बुक में आपका ग्रेड लगा होता है 10 out of 25 in this case, whatever is the grade which you score in the assignment that will be reported here। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप इट वाज हेल्पफुल एंड यूजफुल। आप इसी तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप करें अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर ऑलरेडी है तो उसको फर्दर इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, रिफाइन कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आप सोचिए। तो स्टूडेंट, इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।